Hello students, welcome to my channel Mathematics World and I am Himani. So हम कर रहे हैं रियल नंबर्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करवाए हैं. आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट एक्सरसाइज 1.1. So the first question, as you can see, it's written on the blackboard. Express each number as product ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. सो हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था रियल नंबर्स का, वहां प्राइम फैक्टराइजेशन की एक पूरी वीडियो मैंने अपलोड करी है. उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नाउ हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. सो लेट अस सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 1. सो एज यू कैन सी द पार्ट 1 इज 140. सो 140 को यू हैव टू एक्सप्रेस as product of its prime factors. So हमने बताया था कैसे करते हैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस. we'll write 140 here. So since we have to express it in the product of its prime factors, so यहाँ पर जो numbers हम लेंगे वो prime numbers लेंगे. So 2 7s are 14 0, then 2 35, 2 35s are 70 again. अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, इट विल बी डिविजिबल बाय 5. सो इट्स 5 7s are 35 एंड हियर इट विल बी 7 1s are 7. सो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की वीडियो में भी बताया था, जब तक आपका 1 ना आ जाए तब तक हमने प्राइम नंबर्स से इसको चेक करना है किस किस प्राइम नंबर से ये नंबर्स डिविजिबल हैं. सो वी कैन राइट हियर दैट प्राइम फैक्टराइजेशन of this number 140, that is 2 into 2 into 5 into 7. So you can write it here, 2 into 2 into 5 into 7. So this is how we represent a number as product of its prime factors. So let us solve the third part. Second part you'll do it on your own, right? In similar way. I am doing the part third for you. So third part is, number is 3825. Again, let us factorize it. Write 3825 here. So this number is ending with digit 5. So it will be divisible by 5. So let us divide it by the prime number 5. It will be 5 7s are 35. 3 will be the remainder 32. 5 6 are 30. 2 will be the remainder 25. 5 5s are 25. Again this number is ending with digit 5. So it will be divisible by 5 only. So 5 1s are 5. 5 5s are 25. 1. 5 3s are 15. Now you can check from here. You can just add these digits. 1 plus 5 plus 3. All the divisibility tests you have read in your lower classes. When you add these digits, the answer will be 5 plus 3 8 plus 1 9. And this 9, that is divisible by 3. So it means this number will also be divisible by 3. So we'll divide it by 3. 3 5s are 15, 3 1s are 3. Again 5 plus 1 is 6 and 6 is divisible by 3. So 3 1s are 3, 3 7s are 21. Now 17. Now since 17 it's a prime number, so I have told you what is a prime number. Any number which is having only two factors, the number 1 and that number itself. So here 17 is a prime number. It means it will be divisible by 17 only. So we have got 1 here. So we can write this 3825 as the product of its prime factors as 5 into 5 into 3 into 3 into 17. So we have find the prime factorization of 3825 3825 as 5 into 5 into 3 into 3 into 17. So I hope आपको ये clear होगा. Similarly, the fourth part आप खुद करेंगे and comment your answers in the comment section. Then I'll do the fifth part for you. So let us solve the fifth part. So let us start. अब clearly check करो सबसे पहले तो कि this 7429 इसकी जो 1st digit है वो है 9.
सो इसका मतलब सीधा सीधा है ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, हम सभी डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 7 + 4 + 2 + 9 ये हमें देगा 11 + 2 13 + 2 22। अब क्लियरली दिस 22 दैट इज नॉट divisible by 3, is not divisible by 3, so that means that this number is also not divisible by 3. Okay, this number isn't divisible by 3. अब 5 से हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, बट हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चेक करो। इसकी वंस डिजिट है 9 और हमें ये पता है कि किसी भी नंबर की अगर वंस डिजिट 0 हो या 5 हो, then only that number is divisible by 5. So clearly this number is not divisible by 5. अब आते हैं हम नंबर 7 पे। नंबर 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 7 4 2 9, 7 1 is 7, 4 0, 7 6 is 42, 9, 7 1 is 7. We get remainder 2. It means this number isn't divisible by 7 also. Now the next prime number is 11. So 11 के लिए भी हमारे पास divisibility test है। हम जितनी even places हैं उनका सम कर लेते हैं। तो even place पे हमारे पास जो numbers है वो है एक 2 और एक है 7। second place है और ये fourth place है। So 7 + 2 अगर आप यहाँ करोगे तो 7 + 2 that is 9. और odd places मतलब left out places will be the odd places. This is the first place, this is the second and this is the third place. So odd places का भी आप सम कर लो और इन दोनों को आप कर दो subtract. subtract करने के बाद जो आंसर मिलेगा, अगर वो आंसर 11 के टेबल में आता है तो हम कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पर जो नंबर आता है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, so that clearly implies that that particular number is not divisible by 11. Okay, so 7 + 2 is 9, minus 9 + 4 is 13, so it will be -4. And clearly we know that -4 is not divisible by 11, so it means that this number is also not divisible by 11. अब 13 अगला प्राइम नंबर है। 13 से हम चेक कर लेते हैं। ये थोड़ी कैलकुलेशन लॉन्ग जा रही है बट कोई बात नहीं। 7 4 2 9, सो 13 के टेबल में 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78 होता है। सो 13 5 ज़ा 65, 6 14 में से 5 9, 13 7 ज़ा 91, सॉरी 1 यहाँ आ गया 9, so 13 1 ज़ा 13, ये आ गया 6। अगेन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 13। अब अगला प्राइम नंबर हमारे पास क्या आता है चेक कर लेते हैं फटाफट से। द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 17। सो आई होप कि अब 17 से डिविजिबल हो। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, 14 8 6 2, 17 4 ज़ा 68, 17 3 ज़ा 51, so 5 sorry 62 था 1 and this is 1 9, so 17 7 ज़ा 119। so इतने मेहनत करने के बाद हमें एक प्राइम नंबर मिला 17 जो इस नंबर को डिवाइड करता है। सो 17 4 37 ज़ा is 7429। अब नेक्स्ट अगेन इस नंबर को चेक करना पड़ेगा। 2 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज वंस डिजिट इसकी 7 है। 3 से हम चेक कर लेते हैं। 4 + 3 7, 7 + 7 14 एंड 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है। 11 से हम चेक कर लेते हैं। ऑड प्लेसेस हैं इसकी 7 + 4 11, ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेस का सम है 3, तो वो आ गया 8। 11 से डिविजिबल भी नहीं है। 13 से चेक कर लो। 13 के टेबल में 437 × 13
13 4 13 2 26, 13 3 39, 13 में से 9 4 9 + 4 13 7, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 17 से डिविजिबल, 17 से तो डिविजिबल चेक कर लेते हैं। 17 से 437 × 17, 17 2 34, so 9 7, 17 से भी डिविजिबल नहीं है। लेट अस चेक विद द नंबर 19, 437 × 19, 19 1 19, 19 2 38, so 5 आया इसका रिमाइंडर 57, 19 3 57। ओके, सो इतनी मेहनत करने के बाद हमें पता चला ये नंबर 19 से डिविजिबल है। 19 × 23 दैट इज 437। अगेन 23 का नेचर हमको पता है, 23 इज अ प्राइम नंबर, सो 23 × 1 दैट इज 23। सो दैट मीन्स इतना पार्ट मैं रफ कर देती हूँ। दैट मीन्स the prime factorization of the number 7429, prime factorization of the number 7429 is 17 × 19 × 23. So प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत सिंपल थी, 3 ही प्राइम्स का प्रोडक्ट था, बट वो प्राइम नंबर ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लग गया। ओके, सो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से हम एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स में के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं वो क्लियर होगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। हमने इस वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 3, सो इस वीडियो में हमने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स, पार्ट 1, 3 एंड 4। सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए उनको। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का ही। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।